हेलो एंड वेलकम इन आवर जर्मन एडजेक्टिव सीरीज। आज हम बात करेंगे न्यू 20 एडजेक्टिव्स की, जिनके साथ में हम सेंटेंसेस बना के देखते हैं और उन सेंटेंसेस को आमतौर पे हम वही सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जो आमतौर पे हम डेली यूज लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। सो हियर इज फर्स्ट एडजेक्टिव टुडेज: hilfsbereit. Hilfsbereit, that means helpful. Die Nachbarn sind sehr hilfsbereit. Hilfsbereit, that means helpful. जो नेबर्स हैं, नेबर्स आर वेरी हेल्पफुल. Er war hilfsbereit in jeder Situation. He he was helpful in every situation. In jeder Situation möchte ich dir helfen. हर एक सिचुएशन में मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा यानी पसंद करूँगा. ये फिक्स भी यूज होता है, आप ऐसे वर्ड्स भी याद रखें. In jeder Situation möchte ich Apfel essen. हर एक सिचुएशन में मुझे तो एप्पल ही खाना है. अंडरस्टैंड? In every situation, understand, you can say neugierig. Neugierig, that means curious. The kinder sind neugierig, the children are often curious. Ich bin neugierig auf das Ergebnis. Ergebnis, that means result. I am very curious about the result. स्पारजाम. स्पारजाम, that means thrifty. thrifty का मतलब होता है ऐसा ऐसा आदमी जो भोजन और पैसों को दोनों को एकदम नाप तोल के यूज करता हो. अंडरस्टैंड? यानी जितनी जरूरत हो उतना ही पैसा खर्च करता हो, ऐसे आदमी को आमतौर पे हम लालची कह देते हैं. इन हिंदी वी कैन से लालची. जी इज देयर स्पारजाम मिट गैल्ड. सी इज वेरी थ्रिफ्टी विद द मनी. यानी वो बहुत मितव्ययी है पैसों के साथ में. ein sparsamer Menschen. Mensch kauft bewacht ein. बहुत केयरफुली खरीदता है. जो एक थ्रिफ्टी पर्सन परचेज वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से खरीदता है, यानी कम करवाता है. चीज़ें यूजफुल होती हैं उतनी ही खरीदता है. एयरलिश, दैट मीन्स ऑनेस्ट. एयरलिश, दैट मीन्स ऑनेस्ट. ein ehrlicher Mensch sagt die Wahrheit. Wahrheit, दैट मीन्स ट्रुथ. एक सच्चा आदमी ही सच्चाई बता सकता है ना. ए ऑनेस्ट मैन टेल्स द ट्रुथ. अंडरस्टैंड? एक सच्चा आदमी ही सच्चाई बता सकता है. जी इस्ट इमर एयरलिश. She is always honest. Unhöflich. Next adjective is unhöflich. Unhöflich, that means impolite. Impolite, that means rude. Das war unhöflich von dir. That was rude on you. Of you, sorry, not on, of you. Er ist auf unhöflich zu fremdem. Fremdem, that means strangers. He is very rude with the strangers. Often, that means often. She is often für neue Ideen. She is open for new ideas. She is open for new ideas. हम करते हैं ना, दस हाउस इज ऑफन für neue Ideen. पार्लियामेंट में कहते हैं ना, ये हाउस आपके नए आइडियाज के लिए ओपन है. Er sprach often über seine Probleme. He speak openly about about his problem. He speak openly about his problem. Here is past na, spoke. He spoke his problem openly. So Verschlossen, that means reserved. Er ist verschlossener Mensch. वो तो बहुत रिजर्व मैन है, दैट मीन्स बिजी आदमी है इन कॉन्टेक्स्ट. जी bleibt oft verschlossen. She stay often reserved. Ein eye for justice. This is very important. ऐसे याद रखेंगे, दैट इज important. Eye for justice. Eye for justice, that means jealous. Sie ist eifersüchtig auf ihre Schwester. She is jealous on her sister. Ein, ein eifersüchtiger Freund kann Probleme machen. Jealous friend ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना, ये याद रखें आप. सो ein eifersüchtiger Freund kann
प्रॉब्लम है माखन, जो जेलस फ्रेंड है वो ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। Schuh, Schuhfällig, that means accidental. Das war eine Schuhfällig, Schuhfälliger Fund, mistake. That was a accidental mistake. Wir haben uns zufällig getroffen. हम accidentally मिले. We have met us accidentally. Regelmäßig, that means regularly, यानी रेगुलर। इश माखे रेगलमेशिश योगा, जब आईजी कोई भी वर्ड के एंड में आता है तो हम उसको इश पढ़ते हैं ना। इश तभी पढ़ते हैं जब वो एंड में आ रहा होगा, ये याद रखें ना, बार बार आ रहे रेगलमेशिश। अगर मैंने इसको रेगलमेशी गए, अगर मैंने ई ऐड कर दिया तो ये अब ये इश नहीं पढ़ा जाएगा, दिस इज जी, और जी को गे पढ़ते हैं हम, है ना। सो दिस इज unregelmäßige और दिस इज unregelmäßig, सॉरी regelmäßig, दिस इज regelmäßige और ये regelmäßig, अंडरस्टैंड। तो ये भी आप याद रखें। काफ़ी बार हम रीडिंग रूल्स में मिस्टेक करते हैं, तो ये नहीं करना। जी इस्ट regelmäßig obst, obst दैट मीन्स फ्रूट्स। ईस्ट एसन का पास्ट फॉर्म ना, द वर्ब इज एसन, ईस्ट gegessen। ये वर्ब की तीनों फॉर्म भी हमें आनी चाहिए, B1 में रिक्वायर्ड होती है कि एटलीस्ट आपको मोस्ट कॉमन 500 वर्ब का प्रेजेंट पास्ट एंड पेज 5 फॉर्म आना चाहिए। सो जेल्टन दैट मीन्स रेयर, जॉल्स failures in Zelton, जॉल्स दैट मीन्स such a rare mistake, you can say such a rare mistake। Er besucht uns nur selten, he visit us very rarely। Tougher that means brave, der Soldat that means soldier, war sehr tougher, सैनिक बहुत ब्रेव होते हैं। टाफेरे मेंश गेबन नियर aufgeben, the verb is separable verb aufgeben that means to surrender। जो बहादुर लोग होते हैं वो सरेंडर नहीं करते हैं ना। auf nie geben, nie that means never, never give up, कभी हार नहीं मानते, अंडरस्टैंड। सरेंडर नहीं करते, हार नहीं मानते। aufgeben that means never give up भी होता है। नास दैट मीन्स वेट, माइने क्लाइडुंग इस नास, जो क्लॉथ्स हैं वो वेट हैं। देर बॉर्डन, बॉर्डन दैट मीन्स फर्स, इस नास फ्रॉम रेगन, जो फर्स है वो बारिश के कारण गीली हो चुकी है। ट्रॉकनन दैट मीन्स ड्राई, होइटे इज दास वेटर ट्रॉकनन, टुडे इज वेदर ड्राई। देर वाइन इज द ट्रॉकनन, वाइन इज वेरी ड्राई। एंड ही इज Stolz, stolz that means proud. Ich bin stolz auf dich. I am proud of you. Sie war stolz auf ihre Leistung. Leistung that means work. She was proud of her work. You can say work. Peinlich that means embarrassing. Here is peinlich that means embarrassing. Das war peinliche Situation. That was a embarrassing moment situation. Mir is das sehr peinlich, I have very embarrassing, you can say। ये फिक्स है, ये ऐसे ही यूज होता है, मैं बहुत एम्बेरसिंग फील कर रहा हूँ, फिक्स यूज करेंगे इसका। मेरे इस दास जेर पाइनलिश, ये मेरे लिए बहुत एम्बेरसिंग है। ब्योजे दैट मीन्स एंग्री एविल। एर इज ब्योजे ऑफ मिश, ही इज एंग्री ऑन मी। ein böser Blick from ihm, böser Blick that means look, danger look, angry look from her, him। Verantwortlich that means responsible, er ist verantwortlich für das project, he is responsible for the project। जी इस जेर, ये बेस्ट इसको जी इस जेर अंट फर अंट वॉट, ये बेस्ट इसका एक्स्ट्रा ऐड हो गया।
Sie ist verantwortlich. She is responsible. She is very responsible. वो बहुत ज़्यादा responsible है, ये राइट होगा। Ungeduldig, ungeduldig that means impatient. Kinder sind oft ungeduldig, बच्चे में पेशेंस नहीं होता, वो जल्दबाजी में रहते हैं। Ich bin ungeduldig beim Warten, मेरे में भी वेट करने का पेशेंस नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आज हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एडजेक्टिव्स की बात की, और ये एडजेक्टिव्स मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं, और इनके बिना जर्मन लैंग्वेज बोल नहीं पाते। मैं हर एक क्लास में आपको ऑलरेडी डिस्कस करता हूँ कि एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन्स हमारे पास बहुत सारी होती हैं, यानी एक संख्या में होती हैं, जिनका हम यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकें। क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए हमें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो नाउन है, वर्ब्स है, एडजेक्टिव्स है, एडवर्ब्स हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज हमने 20 एडजेक्टिव्स डिस्कस किए, और ये एडजेक्टिव्स आपके लिए यूजफुल होंगे। अगर आप इनको याद रखते हैं तो आपकी लैंग्वेज डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, और आप B1, A1, A2 जिस भी लैंग्वेज कोर्स को आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करें, जो भी आपके लिए यूज़फुल है। आप कोई सिचुएशन बताना चाहते हैं तो कोई सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सा एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ये सेंटेंसेस आप बना बना के देखें तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। auf Wiedersehen।